آج کی تلاوت کلام مقدس بمطابق متی رسول کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 28ویں آیت سے 30ویں آیت تک خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے: اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کتنے لوگ خوش ہیں؟ یہ ہاتھ اٹھانے کی خوشی ہے یا واقعی مسیح میں خوش ہیں؟ جیسے اشفاق نے کہا، آج تو آپ کے بیٹھنے سے اور آپ کے چہروں سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم بڑے تھکے ہوئے ہیں، رات بھر ہم جاگتے رہے ہیں، اتنا طویل لمبا سفر طے کر کے مجبوری سے خداوند کے گھر میں آئے ہیں۔ زندہ دل اور روح میں مضبوط کلیسیا ہمیشہ خدا کی خوشی کرتے ہیں۔ زبور 91 میں لکھا ہے: اے ساتھ کو خداوند میں شادمان رہو، پرستش کرنا راست بازوں کو کیا ہے؟ زیبا ہے۔ تو ہم پرستش کو ویسے نہیں لیتے جیسے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم اتنی گہری سوچوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے ساتھ کوئی موجود نہیں ہے۔ آج کی اس آیت مبارکہ سے جو میں نے عنوان لیا ہے، کیا صلیب بوجھ ہے کہ رحم ہے؟ کیا صلیب بوجھ ہے یا رحم ہے؟ میرے عزیز بہنوں، بھائیوں، مسیح یسوع پر ایمان رکھنے والے بیٹے بیٹیوں، ہمارے لیے فخر ہے کہ اس لینٹ سیزن میں روزوں کے ایام میں سے ہمارا سفر جاری اور ساری ہے، اور اس سفر کے جو حقیقی متمنی ہیں، حقیقی ایلچی ہیں، وہ یسوع المسیح ہے، جو میرے اور آپ کے لیے صلیب پر مرا۔ میرے اور آپ کے لیے اس نے دکھ اٹھائے اور میرے اور آپ کے بوجھ کو اس نے اٹھایا۔ اس لیے صلیب جو ہے ہمارے ایمان کا نشان ہے اور ہماری زندگی کی کیا ہے؟ نجات ہے۔ مگر اگر ہم اس صلیب کو مانتے نہیں، جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، تو ہماری یہ بے وقوفی ہے، کیونکہ غیر اقوام جو ہے یسوع المسیح کی صلیب کو بوجھ سمجھتے ہیں، بے حسی سمجھتے ہیں، ان کا ایمان نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ روح اللہ تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی، خدا باپ کی روح تھی، وہ جب چلتا تھا اس کا سایہ نہیں تھا، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ صلیب پر چڑھا ہو؟ وہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا اور وہ مر نہیں سکتا، اس لیے وہ صلیب پر سے غائب ہوا اور اس کے ہم شکل کو صلیب چڑھا دیا گیا۔ یہ غیر اقوام کہتی ہے۔ اسی اقوام کے بارے میں خدا کا بندہ پولس رسول پہلا کرنتھیوس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کو درس دیتے ہیں، ان کو پیغام دیتے ہیں کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک کیا؟ خدا کی قدرت ہے۔ ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہمیں سکھاتا ہے، ہماری زندگی ایک منہ بولتا گواہی دیتی ہے، یہ ہماری زندگی ہی ہماری صلیب ہے، اور یہ صلیب کا سفر
कोह गलगत्ता की तरफ रवां दवा है और यीशु अपनी सलीब पर आपका दीदार करना चाहता है। इस सलीब के बोझ को मां बोझ ना समझे, यह सलीब बोझ नहीं है, यह सलीब मेरी जिंदगी का लंगर है, मेरी जिंदगी की पोशाक और खुराक है। यह सलीब मेरी जिंदगी की उम्मीद है, यह सलीब मेरी जिंदगी की आस और मिरास है। इस सलीब के वसीले से अब्दियत का, बादशाही का दरवाजा खोल गया। इंसान और खुदा के दरमियान जो दूरी थी, इस सलीब ने जोड़ दिया और यह सलीब रहम बन गई। मगर हम उन तनकीद नगारों को इस बात के लिए बताना चाहते हैं कि वो मसीह मसलूब जो है वो कामिल खुदा है, वो कलाम मुजस्सम है, वो जाहिर करने वाला है। वो सलीब पर से गायब नहीं हुआ, बल्कि वो सलीब पर मरा। उसका अपना कोई गुनाह ना था, उसकी अपनी कोई बदी नहीं थी, उसकी अपनी कोई बदकिरदारी नहीं थी, बल्कि वो मेरे और आपके लिए इफ्सी बन गया। मेरे सारे दुखों को, मेरे सारे बोझ को उसने उठाकर अपने मुबारक लबों से जब कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये यीशु अल मसीह ने सलीब पर पहले लफाजा बोले तो उसने रहमत का, जिंदगी का और प्यार और मोहब्बत का दरवाजा खोल दिया। बदी के हिफ्ज उसने बदी नहीं की, बदकारों के साथ उसने जंग नहीं किया, थूकने वालों के ऊपर उसने थूका नहीं, कोड़े मारने वालों के साथ उसने जंग नहीं की, मगर मेरे खुदा ने रहम किया, मेरे खुदा ने शिफायत की और मेरे बोझ को उसने हल्का कर दिया। मेरे बोझ को वो उठाकर इफ्सी बन गया। इसलिए सलीब बोझ नहीं है, बल्कि सलीब मेरा रहम है और मेरी उम्मीद है। इस उम्मीद के दामन को अपनी जिंदगी से दूर ना होने दे। जब इस दामन को हम छोड़ देते हैं तो दुनिया से दूर हो जाते हैं, मगर खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को हम जब सुनते हैं तो हमारे अंदर एक उम्मीद का चिराग रोशन होता है, हमें उम्मीद की किरण दिखाई देती है। हमारा सफर जो है दीदनी ना दीदनी है, वो सफर जो है उसमें आसानी आ जाती है और उस सफर का हम सफर कौन बनता है? कलाम मुजस्सम यीशु अल मसीह। इसीलिए उसने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब कहाँ आओ, मेरे पास आओ। हम बोझ में हैं, हम तकलीफ में हैं, हम गुनाह में हैं, हम सताए गए हैं, हमारी बदकारी हम पर कमजोर कर देती है, मगर खुदावन यीशु अल मसीह जो है हमें पास बुलाते हैं, हमसे वो बात करना चाहते हैं, हमसे वो प्यार करना चाहते हैं, हमसे वो मोहब्बत करना चाहते हैं। इसलिए कि मुझे अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को, अपनी मुश्किलात का एहसास हो, ताकि मैं अपने दुखों से, तकलीफों से, परेशानियों से बाहर निकलूं और मुझे एहसास हो, मैं महसूस कर सकूं कि किसी ने मुझे जो बुलाया है वो बुलाने वाला माँ दुनिया का बादशाह नहीं है, बल्कि वो आलमे कुल का बादशाह है, वो आसमान का भी बादशाह है और वो जमीन का भी बादशाह है। उसने तमाम सल्तनतों को ठुकरा दिया, दुनिया की शान और शौकत को उसने ठुकरा दिया और उसने अपने खुदा की इबादत की और उसी को सजदा किया। जब वो अपने खुदा की मर्जी को पूरा कर सकता है, ताबेदारी कर सकता है, तो मुझ पर और आप पर यह फर्जो कर्ज है कि मसीह मसलूब की मसलूबियत में होकर, उसके रहम में, उसके प्यार में होकर हम धत्कारे ना जाएं, हम परेशान ना हों। हमारी लाचारगी उसने दूर कर दी है और हमें उसने पास बुलाया है। वो मुझे भोज से निकालना चाहता है, वो मेरे खून को धोना चाहता है, मेरी वो हड्डियों की, मेरे गोश्त पोश की वो मरहम पट्टी करना चाहता है, वो मीठी मीठी बातें करना चाहता है। उसकी बातों को तो सुनिए,
وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے وہ بات آپ کے لیے رحم بن جائے, وہ بات آپ کے لیے مخلصی بن جائے, اور وہ بات آپ کے لیے نجات بن جائے, وہ بات آپ کے لیے روشنی کا کردار ادا کرے, وہ بات آپ کے لیے زندگی کا دروازہ بن جائے. اور وہ بات کیا ہے کہ میرے بوجھ کو وہ اٹھانا چاہتا ہے. وہ ہاتھ پھیلائے ہیں, اس کے ہاتھ زخمی ہیں, مگر وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے. ہم آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اسے تکتے نہیں ہیں. ہمیں تکنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے, اپنے اندر کی آنکھوں سے دیکھنا ہے. خدا نے ہمارے اندر بہت کچھ رکھا ہے جس کو ہم جانتے نہیں, مگر جانیے, اٹھیے, محسوس کریے, دعا کریں, روزہ رکھیں, اپنے آپ کو خدا کے آگے رکھیں, خالی کر دیں, خادم کی صورت اختیار کر لیں, خدمت کرنا سیکھیں. خدمت محض پرستش کرنے کا نام نہیں, دعا کرنے کا نام نہیں, کلام سنانے کا نام نہیں. خدمت آپ کے قدموں کا چلنا ہے, خدا میں بولنا ہے, خدا میں گواہی رکھنا ہے. ہم گواہی دیتے ہوئے بھی شرماتے ہیں, دعا کرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں, تو ہم کیسے اپنی صلیب اٹھائیں گے؟ صلیب تو پکارتی ہے. ہم اپنے اوپر صلیب کو جب ڈالتے ہم سمجھتے ہیں یہ تو میں بوجھ میں چلا گیا, یہ وزن مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا. مگر یہ بدنی بوجھ نہیں ہے, یہ ہمارے گناہوں کا بوجھ ہے. صلیب کا جو فلسفہ ہے, صلیب کے جو دعووں اور خصوصیات ہیں, یہ میری زندگی کا رحم ہے. صلیب پر زندگی کا رحم ہوا کہ اس نے شفاعت کی. وہ جانتا ہے, وہ معلوم کرتا ہے کہ خدا کتنا عظیم خدا ہے. کون جانتا ہے؟ خدا بیٹا جانتا ہے کہ وہ عظیم خدا ہے. دیکھیں لکھا, روح سے بیابان میں لے گیا تاکہ وہ شیطان سے کیا کیا جائے؟ آزمایا جائے. اس پر آزمائش کیوں آئی؟ وہ آزمائش میرے اور آپ کے لیے ہے کہ وہ بدنی طور پر بیابان میں گیا. 40 دن کا اس نے روزہ رکھا, دن رات وہ بھوکا پیاسا رہا. جب اسے بھوک لگی تو شیطان اس کے پاس آیا. اس نے تانا دیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو پتھر کو کیا بن جائے؟ روٹیاں بن جائے. اگر میں ہوں, آپ ہوں, کوئی اور ہو, بیابان میں ہو, کوئی شخص نہ ہو, 40 دن میں بھوکا پیاسا ہوں, اور کوئی شخص مجھے آ کر کہے کہ یہ بات ہے, یہ اس سے تیری بھوک پیاس مٹ جائے, تو میں تو فوری اس کی باتوں میں آ جاؤں. مگر یہ کلام مجسم ہے, یہ خدا کا ازلی کلمہ ہے, یہ مسیح موعود ہے, یہ المسیح ہے جو صلیب پر مرا ہے تاکہ میرے بوجھ ہلکے ہو جائیں. میں ستایا نہ جاؤں, میں رویا نہ جاؤں, میں تکلیف میں نہ رہوں, میں گمراہ نہ رہوں, میں جھگڑا نہ رہوں, بلکہ صلیب میری آزادی ہے. صلیب جو ہے میری امید کا لنگر ہے, اس سے سیر اور آسودہ ہو. تو یسوع مسیح نے کیا فرمایا کہ انسان ماں روٹی سے جیتا نہ رہے. ہم صرف روٹی کی فکر کرتے ہیں, یسوع نے کہا کہ انسان ماں روٹی سے جیتا نہ رہے. ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ سوچنا ہے, سمجھنا ہے کہ خدا جو موعود خدا ہے, خدا جو ہے موعود خدا ہے, وہ المسیح ہے, یسوع ہے, وہ میرے بوجھ کا منبع ہے. اس لیے جب وہ مجھے پاس بلاتا ہے تو وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ مرہم پٹی کرنا چاہتا ہے, رحم کرنا چاہتا ہے. اپنے ہاتھوں سے میرے زخموں کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ دھونا چاہتا ہے. کسی کو زخم لگے ہوں تو ہم اس کے تو پاس بھی نہیں جاتے, ہم تو اس کی طرف کیداری بھی نہیں کرتے, اس کا خیال بھی نہیں رکھتے. ہماری زندگی ایسی ہیں, ساس بہو سے ناراض ہوتی, بہو ساس سے ناراض ہوتی ہے. جب شادی ہوتی بڑی خوشی ہوتی ہے, لڑکے سے کہتے ایسے ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا. جیسے شادی ہو, شادی کے بعد کیا ہوتا, مہینہ نہیں گزرتا, نہ ساس کو بہو اچھی لگتی, نہ بہو کو ساس اچھی لگتی. پھر ہم اپنے اپنے بوجھ میں, اپنی اپنی صلیب میں گر جاتے ہیں. پھر ہم بوجھ میں کراتے رہتے, گھٹتے رہتے ہیں. ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ جھلس جاتی ہیں, راکھ کی مانند اڑتی رہتی ہیں. ہمارے اندر مسیح کی محبت نہیں ہے. ہم نے مسیح کی محبت سے خالی ہو چکے ہیں اور قید میں چلے گئے ہیں. یہ قید ہمارا گناہ ہے. اس قید سے باہر نکلیں اور یسوع مسیح کے گواہ بن جائیں. جب ہم یسوع مسیح کے گواہ بنیں گے تو یسوع میرا دسترخوان بن جائے. کیا بن جائے گا؟ میرا وہ دسترخوان بن جائے.
दस्तरख्वान वो होता है जहाँ से इंसान की ज़रूरियात पूरी होती है। हम दस्तरख्वान पर बैठते हैं, पानी पीते हैं, रोटी खाते हैं और बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, हमारा पेट भर जाता है। तो इसलिए जब मसीह मेरे पास आ जाता है, मेरे दस्तरख्वान पर आ जाता है, तो हम उसके पास क्यों नहीं बैठते, उससे बातचीत क्यों नहीं करते? हमारी ज़िंदगी जो है नाशुक्रियों के साथ जुड़ी हुई है। हम इतने नाशुक्र हो गए हैं, हमें ये भी नहीं पता कि हम कैसे शुक्रगुजारी करें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये घर में मैंने फ़ोन किया, विज़िट पे जाना था, मैं आधा 15-20 मिनट उस घर का दरवाज़ा नॉक करता रहा, वो दरवाज़ा नहीं खुला। फिर मुझे फ़ोन किया जब मैं घर आ जाए, क्या हुआ जी? मैंने कुत्ते रखे जी, कुत्ते आपस में लड़ पड़े, कुत्तों की वजह से मैं पास सॉरी मैं लेट हो गया। भैया आपको खुद मुझे टाइम दिया, अगर आप अपने घरों में ऐसे जानवर रखोगे जो आपकी खिदमत को, आपकी दुआ को, आपकी बंदगी को, आपकी रूहानी जो तल्लक है उसमें भी रुकावट पैदा करने के क्या फ़ायदा? वो कोई फ़ायदामंद है? खुदा शैतान के साथ जंग करें। जब खुदा का कलाम आपकी चौखट तक आ जाता है तो फिर उसके लिए दरवाज़ा खोलें, उसके साथ कलाम के साथ दिल लगा लीजिए, क्योंकि कलाम जो है ये सलीब है। आपकी ज़िंदगी क्या है? ये मेरा सलीब है। इस सलीब को हम समझते क्यों नहीं हैं? हम अपने अपने ज़ाती फ़ायदों में हैं। कई लोग मेरी मिनिस्ट्री के साथ कंपटीशन करते हैं। मैंने कभी जब से खिदमत में किसी के साथ कंपटीशन नहीं किया। मेरा कंपटीशन शैतान है, मेरा कंपटीशन गुनाह है, मेरा कंपटीशन जो है वो ज़िंदगियाँ हैं कि मैं ज़िंदगियों को क्या कहूँ, सलीब की बात कर सकूँ और उस सलीब के वसीले से मसीह की मसलूबियत के बारे में बता सकूँ। हमारा मकसद लोगों को तनकीद नहीं करना, खादमों को तनकीद नहीं करना, कलीसिया को तनकीद नहीं करना, बल्कि अपनी सलीब उठाइए, अपनी सलीब उठाकर चलें, ताकि आपकी सलीब उठाने से किसी को फ़ायदा हो, कोई जाने कि ये मसीही है। जैसे शफा ने कहा, ये हकीकत है, फिल हकीकत है, जब हम गाँव में जाते हैं, बच्चे बुजुर्ग जो हैं सब मिलकर खुदा की परस्तश करते हैं, तमजीद करते हैं और तालियां बजाते हैं, उनके हाथ थकते नहीं हैं। मगर हम जब देखते हैं, हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं, अपने बदन में देखते हैं और हमारे हाथ थके हुए होते हैं, हमारी आंखें नींद से बुरी होती हैं, हमारी टांगें इतनी कमज़ोर हुई होती हैं, ना हम बैठना पसंद करते, ना हम खड़ा होना पसंद करते हैं, ना हम ताली बजाना पसंद करते हैं, ना हम गाना पसंद करते। क्या पसंद करते हैं? जो पसंद करते चर्च को वो बताइए, वो चर्च वो आपका तरीका सलीका अडॉप्ट कर ले, मगर चर्च कलाम का तरीका और सलीका और मसीह का जो बिताए असूल उन पर गामज़न है। ये ज़िंदगी नहीं है कि हम घर भी सोए रहें और चर्च में भी सोए रहें। अगर लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। खुदा कहता मुझसे सीखो, और ये सीखने की जगह है कि अपने किरदारों अमाल को हम सुधार सकें, क्योंकि मैं हलीम हूं। क्या हूं? मैं हलीम। खुदा ये बताना चाहता है, सलीब जो है हलीमी का जगह है, क्योंकि सलीब पर वो जो चढ़ा है वो मैं और आप नहीं, दुनिया के बादशाह नहीं, बल्कि असली कलमा है। ये खुदा का बेटा है जो कामिल खुदा और कामिल इंसान है। सलीब के ऊपर जो हमें नजर आता है ये जिस्म नजर आता है, मगर जिस्म के साथ खुदा की खुदाई, खुदा की अलूहियत है जो एक लम्हा भी उससे जुदा नहीं है और ना वो जुदा हो सकती है, क्योंकि वो खुद फरमाता मैं और बाप क्या एक है, मेरा बाप काम करता है, मैं काम करता हूं, और यही कलमा कहता मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं। सलीब हमारी हलीमी है, फरोतनी की दर्शगाह है, मेरी जिंदगी का काबा है। इसलिए मेरे अजीज बहनों भाइयों, और दिल का फरोतन है तो तुम्हारी जाने राम पाएंगी। वह हलीम और फरोतन है। जब उसकी हलीमी और फरोतन पर हम निगाह करते हैं तो ये सलीब हमारा बोझ नहीं बनती, बल्कि वो जिंदगी का लंगर और जिंदगी का आराम और जिंदगी की दस्तरख्वान बन जाता है, जिससे मुझे मेरी जान, मेरी रूह जो है आराम पाती है।
یہ सलीब पर चढ़ने वाला अपने बाप की रजा को मालूम करता है और गतसमनी में क्या फरमाता है, ऐ बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे ठहर जाए, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जब वो अपने बाप की मर्जी को पूरा कर रहा है एक दुख तकलीफ में अज़ियत में, और ये दुख सुख उसकी जात का नहीं है, ये दुख सुख मेरी जिंदगी का है। और इस दुख का सफर, इस सलीब के बोझ का सफर जो है बागे अदन से शुरू होता है और कोई गलगत्ता के मकाम पर ये पूरा हो जाता है जब यीशु मसीह फरमाते हैं तमाम हुआ। उसने शैतान के सर को कुचल दिया, उसने उस पेशन गोई को पूरा कर दिया जो पैदाइश 3 बाप उसकी 15 में लिखा है कि मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान का डालूंगा, अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा तो उसकी एड़ी पर काटेगा। उसने काटने की कोशिश की। जब सलीब पर यीशु अल मसीह ने फरमाया तमाम हुआ तो उसने तमाम पेशन गोइयों को पूरा कर दिया और शैतान को उसने शिकस्त दे दी। आगे लिखा क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का। खुदावन में अपने बोझ को हल्का करना सीखें। जब हम अपने बोझ को हल्का नहीं करते तो हम खुदा से दूर तर दूर होते चले जाते। आइए दूसरा तिमोथी से उसका 2 बाप उसकी 12वीं आयत में पढ़ते हैं, अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि अगर हम दुख सहेंगे, सलीब का दुख महसूस करेंगे, जो मेरी राहत बन गया, जो मेरी उम्मीद बन गया, जो मेरा फजल बन गया, तो हम उसके साथ बादशाही कर सकते। ये कैसे मुमकिन है कि सलीब के बोझ में हम धंस जाएं, जख्मी हो जाएं और खुदा की बादशाही करने लगे? ऐसा हरगज नहीं। मगर यीशु मसीह ये फरमाते हैं कि अगर हम दुख सहेंगे तो खुदा बाप के साथ क्या करेंगे? बादशाही करेंगे, क्योंकि वो हमारा एलची है, वो हमारा हकीकी एम्बेसडर है, वो मेरा और आपका हरावल दस्ता है, वो मेरा चंडावल है। तो मुझे अपने साथ अपनी बादशाही का क्या बनाएगा? वारिस बनाएगा। इसलिए सलीब के सफर में से होकर, सलीब के बोझ से निकल कर हमने उसके रहम में आकर उसके साथ क्या करनी? बादशाही करनी। अगर हम उसका इनकार करेंगे, उसको जानेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, उस पर ईमान नहीं लाएंगे, तो वो भी हमारा क्या करेगा? इनकार करेगा। गिव एंड टेक की बात है। तो अपनी जिंदगी में अपने मसीह का इनकार ना करें, बल्कि उसको जानने की कोशिश करें, उसमें रियाजत करें, उसमें ठहरें, उसमें खेमा लगाएं, उसकी हजूरी को महसूस करें और उसके लिए अपने बोझ को हल्का करें कि वो मेरा इकरार कर सके, मुझे जान सके, मुझे समझ सके। ये गुनाह जो हमारी जिंदगियों में है, ये मरूसी गुनाह है। ये मरूसी गुनाह से हमने कैसे निकलना है? नस्लदार कैसे नस्लदार हमने निकल कर बोझ से निकल कर रहम में आना है। सिवाय मसीह के अलावा तो कोई मेरा जख्म, मेरा बोझ हल्का नहीं कर सकता। इसलिए ये सलीब जो है मेरे बोझ को हल्का करती है। हम इस सलीब को अपना बोझ नहीं समझते, बल्कि सलीब को हम मसीह की मीरास और मसीह का रहम और मसीह का प्यार जानते हैं। इसलिए हम सलीब के फलसफे पर गामजन है और रोज़ों में होकर सलीब को जानने की कोशिश करें। ये भूख और प्यास जब मसीह में हम महसूस करते हैं तो मसीह की सलीब को तकते हैं, मसीह के चेहरे को तकते हैं, मसीह की आंखों को तकते हैं, मसीह के लबों को देखते हैं और मसीह के कांटों को ताज को देखते हैं और उसके खून को पुकारते हैं कि वो मेरी जिंदगी में उतर आए, उस पर मेरी बदन पर उसका खून लग जाए, मेरी सारी नजासत दूर हो जाए, मेरा बोझ हल्का हो जाए और वो मुझसे प्यार करे, वो मुझसे बात करे। क्योंकि ये खून किसी बड़े और मेंढे का नहीं है, ये खून है उसके लखते जिगर यीशु अल मसीह का, जो उसका बेटा है, जिसको वो कहता है ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और उसकी खुशी जमीन पर भी है और सलीब पर भी है। ये मुमकिन नहीं है कि वो जमीन पर जब बोल रहा है तब वो खुश है, जब वो सलीब पर चढ़ गया तो उसे अपना मुंह फेर लिया, उसने छोड़ दिया, ऐसा हरगज नहीं है।
बाप हमें गुनाह में नहीं छोड़ता तो अपने बेटे को वो कैसे छोड़ दे? अगर वो छोड़ा हुआ है तो फिर वो कलाम मुजस्सम नहीं है। अगर खुदा उसके साथ है तो वो कलाम मुजस्सम है और कलमा इब्नियत है, और वो कामिल खुदा भी है। वो एक वक्त में ज़मीन पर भी है और इसी वक्त वो आसमान पर भी है। ये नहीं है कि वो महदूद भी है और ला महदूद भी है। अगर वो महदूद है जिस तरह हम महदूद हैं, दुनिया के बादशाह महदूद हैं, फिर तो वो छोड़ा जा सकता है। अगर वो लामहदूद है, लामहदूद कुदरत रखता है, लामहदूद प्यार रखता है और लामहदूद कुदरत का हामिल है और वो मौज़ात करता है, तो फिर किस तरह वो छोड़ा जा सकता है? एक लम्हे के लिए नहीं छोड़ा। इसलिए अपनी जिंदगियों में समझे, खुदा आपको नहीं छोड़ता। जब खुदा आपके साथ है तो बेटा भी आपके साथ है, रूह कुद्दस भी आपके साथ है। खुदा के कानून मुतहदा तौर पर काम करते, वो अलग-अलग काम नहीं करते। इंसानी दुख, तकलीफ़ें, परेशानियां, मुश्किलात हमारी जिंदगियों को ऐसे लगता है उसमें हम करा रहे हैं, बोझ तले रो रहे हैं, हम टूट रहे हैं, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। मगर जैसे हम अपने दुखों को सहने का बोझ उठा लेते हैं तो खुदा का हाथ बढ़ जाता है, खुदा का रहम आ जाता है, खुदा तरस खाता है और मेरे बोझ को हल्का कर देता है और मुझे अपनी पनाह में ले आता है। फिर मैं बोझ बर्दाश्त करके अपने यीशु पर ईमान ले आता। हम ईमान लाए हुए लोग हैं। तकलीफ बर्दाश्त करते करते हम मसीह के गवाह बन गए। ये गवाही के दिन हैं, माफ़ी के दिन हैं, जुड़ने के दिन हैं, कायम रहने के दिन हैं। इसलिए इन दिनों को माज ऐसे न समझें, बल्कि ये दिन खुदा और इंसान के मेल जोल के दिन, खुदा और इंसान के क्या है? मेल जोल के दिन हैं। इन दिनों को समझे, जाने और अपने दुखों को जाने की कोशिश करें। दुख आपका फ़ख्र होना चाहिए, क्योंकि ये दुख हमें सलीब के नज़दीक लेकर जाते हैं और हमें कलाम खुदा में लिखे हुए लफ्ज़ों के मुताबिक उसकी बादशाही में बादशाही करने का क्या बनाते हैं? अजर अता फरमाते हैं। क्योंकि ये ज़मीनी जो ज़िंदगी है ये दुखों के हक़ाइक़ पर मबनी है। जब तक हम ज़मीन पर हैं, रोते चलाते, दुख करते, मातम करते हुए नज़र आते हैं, मगर जैसे हम मसीह में शामिल हो जाते, मसीह में कायम हो जाते हैं, तो मसीह में अपनी बादशाही की बात कर। यीशु ने क्या करा? तौबा करो, आसमान की बादशाही नज़दीक है। यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ इस बात से किया कि तौबा करो, आसमान की बादशाही क्या है? नज़दीक है। बादशाही का मालिक ज़मीन पर है और वो आपको ये कहता है तौबा करो। सलीब जो है तौबा का असास है। तौबा करने पर हमें मजबूर करती है कि हम उसके जलाल के क्या बन जाए? मुश्ताक बन जाएं। उसके कामल हुक्मों पर अमल पैरा बनकर अपने मुंह को फेरे नहीं, बल्कि अपना मुंह को सलीब की तरफ कर लें। सलीब जो तसलीस के दिल पर खड़ी है और खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दस की गवाह बनाती। आमीन। जब हम उसके गवाह बन जाते हैं तो हम दुनिया में मसीह की तरह नजर आते हैं। फिर हम देखते, लोग कहते यार ये बच्चा पहले ऐसे था, अब देखो खुदा की तारीफ़ करता है, परस्तश करता है, इसके हाथ में खुदा का कलाम है और ये कलाम उठाकर चलता है। इसने तौबा किए हैं और मसीह ने इसे क्या कर लिया? चुन लिया। हम चुने हुए हैं। हम नहीं मसीह को चुन सकते, बल्कि उसने मुझे चुन लिया। तुमने नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। हमारे अंदर वो सख्त नहीं है कि हम चुन सकें, बल्कि खुदा हमें चुन लेता।